हाँ जी बेटा, so let's have a quick revision of this chapter. So on your request, I'm going to revise it quickly for you. So the chapter, it opens where we see that the inauguration ceremony is taking place, and it is taking place in the Union Building, the amphitheater in Pretoria, right? And it was going to be attended by politicians, dignitaries, more than 140 countries, say, from all around the world. And Nelson Mandela, in his speech, he spoke to the gathering about the sufferings of common man in South Africa, that how the policy of apartheid, it created a deep and lasting wound in their country. He talked about the courage and struggle of comrades, that every time he has seen men and women risk and give their lives for an idea, for a cause. And he discusses the apartheid in South Africa, and this story also discusses about Mandela's struggle for equal human rights for everyone in his country. So we see that how this apartheid rule, it actually deprived the people from their rights. How for many years the whites, they practiced the policy of racial discrimination. So it stripped the native black people from their rights. They were forced to live in the slavery, right? And how they were subjugated, they were discriminated, they were forced to live the life of poverty. So this chapter, it also talks about the long, arduous, and difficult journey of the people of South Africa who sacrificed their life to gain freedom from the harsh and the brutal regime of the whites, that is the rule of apartheid that was there. And it also explores the role of the extraordinary men in the freedom struggle. जो लोगों ने स्ट्रगल किया, उन लोगों के बारे में भी कि उनमें कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटीज थी, ये चैप्टर उसको भी डिस्कस करता है, राइट? There are few important quotes which is included in the chapter when Nelson Mandela says, "Never, never again this beautiful land of South Africa will experience the oppression of one by another." In his speech, he talks about this when he says that कि आज के बाद आगे लाइफ में कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका में लोगों को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा. They would not be forced to live a life of poverty, and either discrimination of any kind will never be experienced by them. He also talks about this thing that I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Where he shares about his opinion that how, as a child, he used to consider himself a free one, a person who is free. आज़ादी का मतलब उनको इतना ही पता था, लेकिन कहते कि मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि कैसे मेरा ये बचपन का फ्रीडम एक इल्यूजन था. He also talks about it was this desire for freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that animated my life. ये जो डिजायर उनमें पैदा होती है, लोगों में जो उन्होंने देखी कि किस तरह से लोग सभी आजाद रहें, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं, जब उनको ये एहसास हुआ कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, then it animated his life. It brought a transformation in his life. And he says, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressor and oppressed are alike robbed their humanity. वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है या जो ऑप्रेस्ड है, दोनों की एक जैसी सिचुएशन है, क्योंकि दे बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. सो इन चीजों का वो जिक्र करते हैं, धीरे धीरे हम उनके बारे में और पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ते हैं. So we see that how he talks about that in every man's life there are two obligations. The twin obligation, which is very important, that he mentions about the obligation towards his parents, the family, parents, his wife, children. So he has an obligation to his people, his community, and his society. So in a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. So वो बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस की, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे इंसान जो है अपनी ताकत, अपनी आदत, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से उनको
पूरा करता है। सो हर इंसान के ऊपर दो तरह की ऑब्लिगेशन होती है, एक अपने फैमिली के प्रति, एक अपनी सोसाइटी, अपने देश के प्रति। सो वो किस तरह से इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन एंड द एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. And thus, he talks about that while staying in South Africa, a man who is always discriminated on the basis of his color, he is always punished and he is isolated, because there he fails to fulfill his obligation towards both his family and towards his nation. And the people, they are forced to live a twilight existence of secrecy and rebellion. वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे फिर लोग फोर्स हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं एक ऐसी एग्जिस्टेंस में जीने के लिए जहां उनकी एग्जिस्टेंस मायने ही नहीं रखती, वो एक रिबेल की लाइफ जीने लगते हैं. सो वो अपने आप ही जिक्र करते हैं कि कैसे उनको ये महसूस हुआ कि जब वो अपनी देश के प्रति जिम्मेदारियां निभाना चाहते थे, देन ही वाज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली. So इस तरह से they were stopped from doing their jobs, from doing their duties towards their families, towards their nation, just because they were discriminated on the basis of race. So he says that अगर आप साउथ अफ्रीका जैसे देश में रहते हो तो आप अपने बर्थ और कलर के हिसाब से you fail to fulfill those obligations. So a man of color who attempted to live as a human being was punished and he was isolated. A man who tried to fulfill his duties to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life, a twilight existence of secrecy and rebellion. And in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में इस तरह से बहुत सारी एट्रोसिटीज का सामना किया था वहां के लोगों ने. So he says, I did not in the beginning, he did not realize that how in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, a father and a husband. So beginning में जब वो अपने लोगों को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपनी फैमिली को आगे रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि तब तो वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने देश को आगे रखा तब कहीं ना कहीं वो अपनी ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड वो पूरा नहीं कर पा रहे थे. ही वॉज नॉट अलाउड टू फुलफिल both the obligations. Somewhere how he suffered. And he says that I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. So वो बात करते हैं उस टाइम की कि उनको ये एहसास था कि वो फ्री ही जन्मे हैं. तब उनको ये एहसास ही नहीं था कि किस तरह से उनका देश एक बहुत बड़े डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं. उनको इस बात का एहसास नहीं था. वो कहते हैं कि मुझे लगा कि आई वाज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. ही वाज फ्री टू रन इन द फील्ड्स near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars, ride the broad backs of slow moving bulls. So is तरह से he was free to do everything. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. He was free in every aspect. उसको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो गुलाम है, वो बंधक की तरह रह रहे हैं, उनको आजादी ही नहीं है जब वो छोटे थे. So these are feelings that he had. It was in his childhood time period. He felt that he was always free, free to roam anywhere, free to do whatever he wanted in his life. And he says, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for him. तो जब उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जो बॉयहुड फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, तब उनको ये पता चला कि एज अ यंग मैन उनकी जो फ्रीडम है वो तो उनसे कब से ही छीन ली गई है, वो तो आजाद थे ही नहीं. और तब उनमें ये जो भूख है हंगर के लिए, जो आजादी के लिए, वो कहते हैं कि मुझ में वो डेवलप हो गई. आई वॉन्टेड टू लिव अ फ्री लाइफ, मैं आजाद रहना चाहता था, लेकिन इससे पहले तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं आजाद नहीं हूं. सो वो बताते हैं कि किस तरह से एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट वो फ्रीडम चाहते थे. छोटी छोटी फ्रीडम की बात करते हैं, ट्रांजिटरी फ्रीडम की बात करते हैं कि कहीं भी आ जा सके, देर रात तक जाके
पढ़ सके। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, वो क्या चाहते थे, वो एक ऑनरेबल और फ्री लाइफ चाहते थे, जहां पर वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपनी जीवन जो याचिका है वो अर्न कर रहे हैं, अपनी कमाई अपने पास रख पा रहे हैं, शादी कर पाते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, और इस तरह से वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं फील करते हैं लॉफुल लाइफ के तहत रहते हुए। वो चाहते हैं कि वो आजाद रहें, और इस तरह से उन्होंने आजादी को धीरे धीरे समझा कि कैसे एज अ बचपन में जिस चीज को वो आजादी समझते थे, इट वाज जस्ट एन इल्यूशन, वो तो सिर्फ एक भ्रम था। फिर कहते हैं, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। उनको ग्रेजुअली ये बात का एहसास हुआ कि वो तो कभी आजाद थे ही नहीं, और ना ही उनके देशवासी, उनके भाई बहन, वो सारे लोग भी आजाद नहीं थे। He realized that they were not at all free. He says, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो वो कहते कि मुझ जैसे जो लोग ब्लैक थे, जिनकी स्किन कलर ब्लैक थी, वो सब ही आजादी से वंचित थे। Their freedom was limited. They were curtailed of their freedoms. उनकी आजादी थी ही नहीं। And it was then that he joined the African National Congress, when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो जब एज एन इंडिविजुअल वो सिर्फ अपनी आजादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसके बाद एक तब्दीली आई, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ द नेशन एज अ होल। वो उन लोगों की आजादी के बारे में भी सोचने लग गए। एंड इट वाज देन दैट ही जॉइंड ANC, the African National Congress. So he says that it was this desire for freedom जिसने that my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। A stimulation that he received from this desire for freedom. उनको एक अजीब सी अपने अंदर एक एनर्जी महसूस हुई, एक इच्छा पैदा हुई उनके अंदर कि वो अपने देश के लोगों के लिए लड़ें, आजादी लेकर आए उनके लिए। एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड एक डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान में बदल दिया था। अब उनको डर नहीं लगता था किसी चीज का। ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। तो उन्होंने लॉ की स्टडी की थी, वो कानून जानते थे, लेकिन आज सिर्फ अपने देश को आजाद करने के लिए ही वॉज रेडी टू ब्रेक द रूल्स, ही बिकेम अ क्रिमिनल, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि इस तरह से वो आजादी नहीं पा पाएंगे, उनको दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। और क्रिमिनल नहीं थे वो, लेकिन जो व्हाइट पीपल थे उनकी नजर में ये क्राइम था जब आप अपने हक के लिए लड़ना शुरू करते हो। सो दैट वे ही वाज कॉल्ड अ क्रिमिनल। एक फैमिली लविंग इंसान जो था वो बेघर हो चुका था, बिकॉज नाउ ही वाज इन द स्ट्रीट्स fighting for the cause, fighting for the freedom of the people. He started living a life as a monk. So वो आगे क्या कहते हैं कि फ्रीडम जो क्या है वो है, उनको ये महसूस हुआ कि इंडिविजिबल है, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता है कि बस मैं आजाद हो गया मतलब सब आजाद है, ऐसा नहीं है। सबकी आजादी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और सही मायने में एक इंडिविजुअल आजाद कब है, जब वो पूरा देश आजाद है। So he says the chains on any one of my people were the chains on all of them, and the chains on all of my people were the chains on me. तो अगर कोई एक भी इंसान उस गुलामी की चेन से बंधा हुआ है, दैट मीन्स पूरा देश बंधा हुआ है। और अगर पूरा देश बंधा है तो मैं आजाद कैसे हो सकता हूँ, एक इंडिविजुअल आजाद कैसे हो सकता है। एंड ही सेज आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। वो एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात को जिक्र करते हैं कि जो ऑप्रेसर है और ऑप्रेस्ड है, दोनों ही आजादी के हकदार हैं, क्योंकि एक जो बंधन लगाता है और एक जो बंधक है, दोनों ही गुलाम है। और जो ऑप्रेसर है वो किस चीज का गुलाम है, वो अपनी हेट्रेड का प्रिजनर है, वो अपनी ही हेट्रेड, अपनी ही नफरत का प्रिजनर बना हुआ है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी फ्रीड फ्रॉम द हेट्रेड। सो इस तरह से वो बात करते हैं आजादी की। And he says that a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो अपनी ही prejudices, अपनी ही छोटी सोच में बंधा हुआ है। So बहुत जरूरी है कि उस ऑप्रेसर को भी आजाद किया जाए, उसकी अपनी मानसिकता की गुलामी से, उसकी जो छोटी सोच है, छोटी मानसिकता है, उसको उससे आजाद करना बहुत जरूरी है। And it's a very important line when he says, man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished.
इंसान की जो छाई है वो कुछ देर के लिए उसमें छुप जरूर सकती है, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। वो ये कब कहते हैं, जब वो ये याद करते हुए कहते हैं कि उनको इस बात का एहसास है कि किस तरह से जब वो जेल में थे, जब उन्होंने अपने उस गुलामी के दिनों में वो जेल में कैद थे, तो उन पर जब एट्रोसिटीज होती थी, तो जब वो ग्लिमर ऑफ वो स्पार्क देखते थे उन गार्ड्स में, तो उनको एक हिम्मत सी मिल जाती थी। और वो इस तरह से कहते हैं कि मुझे तब उम्मीद जाग जाती थी कि ह्यूमैनिटी अभी मरी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। एंड इट हेल्प्ड हिम टू कीप ऑन मूविंग फर्दर इन हिज लाइफ। एंड दस ही कमेंट्स कि अच्छाई जो होती है वो कुछ देर के लिए छुप जरूर जाती है, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता है। और इस तरह से वो देखते हैं कि किस तरह धीरे धीरे ही वॉज एबल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, and a revolution was brought in South Africa, and finally South Africa was free from the bondages of apartheid. वहां के लोग जो थे फाइनली आजाद हो चुके थे अपनी इस अपार्थीड की रूल से। सो इस तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और इज बैकग्राउंड और इज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। सो अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार करना मोर नेचुरल है टू ह्यूमन हार्ट। जो प्यार की फीलिंग है वो बहुत नेचुरल आती है, किसी के भी प्रति स्नेह का डेवलप होना, कुछ अच्छा लगना, ये एक नेचुरल सी टेंडेंसी है। बट नफरत करना सीखना पड़ता है। तो इस तरह से अगर नफरत करना सीख सकते हैं, तो वो कहते हैं कि लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, बिकॉज इट इज मोर नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग। सो इस तरह से वो कई बातों को उजागर करते हैं अपनी स्पीच में। वो अपने थैंकफुलनेस को भी जाहिर करते हैं कि किस तरह से वो उन लोगों को थैंक करना चाहते थे जिन्होंने इस कंट्री को आजाद करने के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया। एंड ही रिमेंबर्स ऑल दोस पेट्रियट्स। बहुत सारे नाम वो लेते हैं, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथली, ऐसे लोगों का वो जिक्र करते हैं और वो उनकी तरफ आभार व्यक्त करते हैं। और वो ये कहते हैं कि आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स बिकॉज ही was able to gather courage to fight against apartheid by getting an inspiration from these people. He got power from these people, and thus he paid a homage, he paid a tribute to all those patriots who sacrificed their life. He also adds about the courage, wisdom, and generosity of these people. And a very important remark that he makes, that it requires such depths of operation to create such heights of character. कि शायद कई बार इस तरह के ऑपरेशन, एट्रोसिटीज की जरूरत होती है ऐसे कैरेक्टर बिल्डिंग अप होने में। और अपार्थीड के रूल में ऐसे ऐसे पेट्रियट्स जो है उनका, जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने हर तरह की हार्डशिप्स को, एट्रोसिटीज को फेस किया, और उनकी पर्सनालिटी में क्या झलक नजर आई। दे रिफ्लेक्टेड करेज, विजडम, द स्ट्रेंथ, द जेनरोसिटी। वो बहादुर भी थे, वो ज्ञानी भी थे, उनमें ताकत भी थी टू फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट, एंड वो जेनरस भी थे, वो अपने लोगों की भलाई के लिए काम भी करते थे। सो he saw them time and again. He met those men and women who risked their lives, who gave their lives for the freedom struggle of South Africa. So इस तरह से this is about the chapter Nelson Mandela. So I hope this is clear. I tried to cover the main aspects from the chapter. Yes.